मैडम मैडम आ गई मैडम आ गई मैडम आ गई जो मैडम आया जो भी मैडम आ गई मैं तेरी छोटी क्लास में बेकुड़ी देख काट के देख Good evening. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम ma'am. मैम Ma'am, how are you? I'm fine, beta. Ma'am, how are you? Fine. मैम हाउ यू डू All of you write your name, school name. Your name and surname first letter will be capital. Your school name first letter will be capital. Okay. Ashwadeep, correct it. Your school name first letter will be capital beta. Vidya Mandir Rampura VMR will be capital. Komal Preet, write K capital. Write your name properly. मैम आप क्या करवा
Turn on your video, everyone. Okay, let's start. Today we are going to just go for an overview of English grammar. Okay, what are part of speech and how many parts are there in English grammar, and why it is important to understand these things before going for sentences, active, passive, direct and indirect speech and all. Okay, मैम yes. आपकी screen share हुई। Screen is not visible to you. मैम दिखाई दे रही है। यस मैम। मैम अब दिखाई दे रही है। मैम पहले नहीं दिखाई दे रही थी। Okay, beta. We have 8 part of speech. Okay, noun, pronoun, verb, adjective. आपको याद होते हैं ये? आप इनको याद रख पाते हो? यस मैम। यस मैम। Okay, tell me part of speech. नो मैम। The verb, adverbs, Verb, conjugation, adverb, noun, pronoun, preposition, conjunction, prepositions, articles, adjective, noun, adjective, adjective, verb, conjugation, prepositions. verbs, adverbs, Ma'am, preposition, conjunction. Which one? Interjections. आपको ये याद था या बुक में से चेक किया? ये आता है। याद था मैम। इंटरजेक्शंस अभी अभी हमारे स्कूल में खत्म हुआ चैप्टर। Okay, what are interjection? मैम आर सडन फीलिंग्स। देखो, आप क्या करवा रहे हो? रे, ब्रावो, हेलो, ओ। yes. See, we have a method to recall it. इसको अच्छे से आप बाद में इसको याद कर पाए, ठीक है? We have a method. देखो, you know noun, ठीक है? Noun is the name of a person. Noun is subject जिसके बारे में हम बात कर रहे होते, that is noun. अगर हम उसका नाम बार बार नहीं लेते, अगर if his or her name is again repeated again and again in sentences, so we use, instead of using name, we use pronoun. अगर हमें noun को बार बार नहीं लिखना, like if we are talking about John and again we are taking name John is doing this, John was this, so it seems very awkward, so we use pronoun, ठीक है, to avoid repetition of name John. अब adjective क्या करता है? Adjective tells quality of noun. Adjective noun की quality बताता है, ठीक है? Let's suppose we have a cat. Take an example. Our noun is cat. हम cat के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन cat कैसी है? cat कैसी है? Big cat, ठीक है? या फिर fat cat, white cat. ये words क्या है जो noun से पहले हमने यूज किए हैं? Adjectives हैं, ठीक है? ये noun के बारे में ज्यादा बताते हैं, कुछ additional information देते हैं, ठीक है? Like
let's take an example girl. We are talking about girl. हम किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. अगर मैं बताना चाहती हूँ brown hair girl, brown hair girl, ठीक है, और we say beautiful girl. So girl कैसी है, गर्ल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन किसने दी, ब्यूटीफुल वर्ड ने. यस और नो? यस मैम. ठीक है. नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी वर्ड देता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ठीक है. व्हाई वी आर राइटिंग इट इन वन नेम टू रिकॉल इट. ये एक दूसरे से रिलेटेड है. नाउन इन प्लेस ऑफ नाउन हम प्रोनाउन यूज करते हैं और एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है. फाइन. नाउ वी हैव मैम. यस मैम आई हैव अ डाउट. आस्क बेटा. मैम जो एडजेक्टिव है मैम वो सिर्फ नाउन की क्वालिटी बताता है और किसी वर्ड की नहीं बताता. यस ओनली नाउन. और ये यूज होता है नाउन से लेफ्ट में. ठीक है. नाउन के लेफ्ट में यूज होगा. पोजीशन क्या है? ओके मैम. एडजेक्टिव प्लस नाउन. यस मैम आप अभी एडजेक्टिव समझा रही हो? नहीं बेटा, मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बता रही हूँ. अब हम पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे मंडे से. तो उसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे और इसको आई वांट टू टेल ना कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार. आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. आई एम जस्ट टेलिंग वन लाइन डेफिनेशन टू ऑल. मैं इनको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आज. मैं सिर्फ आपको इनको समझा रही हूँ. एक कि नाउन आपको क्लियर होना चाहिए, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. ओके. जैसे सेंटेंस में आपको ये, अगर आपको एक बहुत बड़ा सेंटेंस दिया जाता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है. एडजेक्टिव लेफ्ट में, नाउन से लेफ्ट में यूज होता है. ठीक है. जब भी आपको एडजेक्टिव ढूंढना है ना, ऑलवेज चेक लेफ्ट साइड ऑफ द नाउन. क्लियर? जैसे आप कभी ऐसे बोलते हैं गर्ल ब्यूटीफुल, कभी आपने ऐसे यूज किया है गर्ल ब्यूटीफुल? मैम नो. वी ऑलवेज राइट हियर ना ब्यूटीफुल. हम हमेशा क्या लिखते हैं? वी ऑलवेज राइट ऑन ब्यूटीफुल गर्ल. सो व्हाट इज पोजीशन? एडजेक्टिव. दिस इज आवर एडजेक्टिव. पहले एडजेक्टिव यूज होगा, नाउन से लेफ्ट में एडजेक्टिव यूज होगा. यस. एनी डाउट? ठीक है. नाउ वर्ब. वर्ब इज एक्शन. जब भी कोई सेंटेंस में एक्शन होता है जो नाउन करता है या फिर उस दैट इज वर्ब. ठीक है. वट एवर एक्शन इज देयर, जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटी इज डन इन द सेंटेंस, सो दैट इज एडवर्ब. एडवर्ब की सॉरी वर्ब. वर्ब एडवर्ब. अब एडवर्ब को आप ब्रेक डाउन करो. add plus verb. Whenever something is added to verb, जो adverb की क्वालिटी बताए. ठीक है. एक्शन कैसे हो रहा है, जो कुछ कोई वर्ड जब एक्शन हो रहा है उसमें कुछ ऐड करे तो दैट इज एडवर्ब. ठीक है. लाइक रन फास्ट, दौड़ना है. एक्शन वर्ब क्या है? रन, रनिंग. लेकिन अगर हम उसके साथ फास्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो दैट इज एडवर्ब. सो एडवर्ब इज ऑन ऑलवेज राइट साइड ऑफ द वर्ब. एडवर्ब कहाँ होता है? राइट साइड. क्लियर? यस मैम. यस मैम. आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये नाउन है या प्रोनाउन है. आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है. और ये जो तीन है नीचे, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंजक्शन क्या है, प्रेपोजिशन क्या है. सो दीज डाउट शुड बी क्लियर टू यू. जैसे ही आपको पता चलता है कि प्रेपोजिशन, कंजक्शन, आपको पता होना चाहिए कि अब हम क्या करने वाले हैं. ठीक है.
Now check out this preposition. Let's take an example. The ball is on the table. Preposition को break करो. Preposition. ठीक है? Pre means पहले. Position means position बताना. And now check out this sentence. So preposition clear. Preposition. How you will say preposition, preposition. Okay. Which word is preposition in this sentence? Can you tell me? मैम ओन। On. मैम एक बार फिर से बताना preposition क्या होते हैं? Preposition. Okay. Pre पहले, before. Pre means before. Position जो position बताए. देखो, what is ball? Ball is which part of नाउन। noun? मैम नाउन। मैम नाउन। Okay. Table. मैम नाउन। मैम नाउन। Okay. Now check out. There is a table, and one ball is there on this table. Okay. Can you tell me where, without telling me कि ball is on the table? क्या आप उसकी ball की position बता सकते हो? नो मैम। नो मैम। बताना पड़ेगा ना कि बॉल किस चीज पर है, किस नाउन पे है. ठीक है? बॉल व्हाट इज, पता चलेगा कि नीचे पड़ी है ऊपर पड़ी है. हाँ. सो वी आर यूजिंग नाउन. देखो, preposition pre means before. पोजीशन बताने, पहले पोजीशन बताएगा. ठीक है? देखो, इसने पहले पोजीशन बता दी किसकी, इस टेबल से रिलेट करके. किस चीज की पोजीशन बताई? बॉल की पोजीशन बताई. ठीक है? इज दिस क्लियर? वाई प्री? नाउन से पहले, नाउन से पहले preposition यूज होगा. ठीक है? और बॉल की पोजीशन बताई as in comparison to table. Let's suppose one room is there. ठीक है? Now table is lying here. यहाँ पे टेबल है, ये बॉल है. We have one sofa, one bed. ठीक है? Here we have window and curtain. अब इस रूम में बॉल की पोजीशन क्या है? अगर बॉल टेबल पर है तो बॉल इज ऑन द टेबल. अगर बॉल सोफे के नीचे है तो बॉल इज अंडर द सोफा. ठीक है? अगर बॉल अगर आपको बोलना है कि बॉल बेड के पास में है, द बॉल इज नियर टू बेड. सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ बॉल. ठीक है? विद एज वी कंपेयर विद अदर नाउन, दूसरे नाउन को कंपेयर करके वी आर फाइंडिंग आउट पोजीशन ऑफ द बॉल. क्लियर? नाउ वी हैव मेनी मेथड. बॉल पीछे भी हो सकती है बेड के, द बॉल इज बिहाइंड. आगे भी हो सकती है, सामने, अगर हमने सामने बोलना है इन फ्रंट ऑफ. ठीक है? अगर साइड में है तो असाइड. क्लियर? अगर बॉल पास कर रही है, सो इस यहाँ बेड से आपने यहाँ फेंकी और यहाँ पे द बॉल इज पासिंग थ्रू. सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट पोजीशन. सो preposition tells us position. Clear? Yes, ma'am. Preposition. Yes. Now conjunction. मैम पासिंग, मैम वो हो गया, वर्ब में आ गया. Yes? मैम पासिंग वर्ब में आ गया. Yes. Through is preposition. The cat is running. The dog is running. Okay. We have two sentence. Now we want to join them. हम इसको एक भी करके लिख सकते हैं. तो how we will write it? Ma'am, The cat and dog are running. Yes. The cat and dog is running. Better two are there now. Cat and dog, two are there. So what we will use? Are running. And conjunction and. Yes, this is conjunction. What conjunction does? It join two sentences. जब दो sentences को जोड़ना होता है तो we use conjunction. Clear difference between preposition and conjunction? Yes, ma'am. मैम, Yes. मैम जब आप preposition समझा रही थी ना तो मेरा ना नेट रुक
किया था, तो एक बार बता दो। ओके द बॉल इज टेबल। ठीक है, बॉल कहाँ है? टेबल पर है। हमें बॉल की पोजीशन कैसे पता चलेगी? अगर आप टेबल के बारे में नहीं बताएंगे तो आप बॉल की पोजीशन बता सकते हैं? मैम नो। ठीक है, वी हैव वन एक रूम में दिस इज सोफा, दिस इज बेड, ओके, एंड वी हैव अगेन वन टेबल हियर, इस पे बॉल है। सो व्हाट यू विल से, बॉल इस रूम में कहाँ पर है? बॉल इज ऑन द टेबल। अगर बॉल बेड के पास सामने है, इन द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बेड, द बॉल इज अंडर, अगर सोफे के नीचे है द बॉल इज अंडर द सोफा। सो दिस वे यू टेल द पोजीशन ऑफ द बॉल। ठीक है, जब भी हमें पोजीशन बतानी होती है वी यूज preposition। प्री मीन्स पहले, पोजीशन, ठीक है, पहले preposition यूज होगा, फिर नाउन यूज होगा, नाउन से पहले preposition आएगा। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू मैम। ये पोजीशन बताएगा, ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा, और इंटरजेक्शन इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। देखो, whenever you are saying something in your language, ना different languages have different words, like Punjabi has a different way to say, like you say to your friend oye, ठीक है, what do you mean by oye? Is there any word, कोई meaning है इसका? No, but you want to say to your friend oye, okay, and these words express your strong feelings। जब भी आपकी strong feelings express करनी होती है you use interjections in your sentences, okay। let's suppose आप किसी को चुप करवाना चाहते हैं, you say shh। is there any exact meaning in of a sh in dictionary? No, but still they express meaning कि you are saying, सिर्फ आपने sh किया लेकिन you are saying to other person that keep quiet, okay। So interjection has certain meanings and they express your feelings। ये exactly कोई word नहीं होते, like SHH, ये कोई word नहीं है, ठीक है, कि proper कोई English का word है, but still they have meaning। मैम they expresses your feeling। yes बेटा? मैम जो शो है मैम, शो में उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नहीं आएगा? yes, exclamation will come। ओके now let's move to next slide। is this clear? is there any doubt? नो मैम। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कंजक्शन जब हम मैम यस मैम हमें थोड़ा सा डाउट है। पूछो बेटा। मैम हमें कंजक्शन वो जो आप समझा रहे थे मैम, अभी वो नहीं हमें समझ आया कंजक्शन। ओके चलो मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब आपको इतना लर्न करना है, इसको बहुत डिटेल में मत करो। अब अभी जस्ट आप इतना लर्न करो कि आपको प्रेपोजिशन पोजीशन बताना, कंजक्शन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना, इंटरजेक्शन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इतना आपको वर्ड्स क्लियर हो जाने चाहिए कि जब आप पार्ट ऑफ स्पीच करो ना कि टुडे वी आर गोइंग फॉर कंजक्शन, तो यू शुड नो कि व्हाट वी आर, मतलब यू शुड हैव एन आइडिया कि आज हम क्या करने वाले हैं, और दिस वे यू कैन लर्न इट, ठीक है। देखो मेक दिस वन ग्रुप, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है, ये इसकी क्वालिटी बताएगा, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताएगा, वर्ब में ऑलरेडी वर्ब इज देयर, सो ये वर्ब की क्वालिटी, वर्ब में कुछ ऐड करेगा, ठीक है। preposition, conjunction and interjection they are different, तो इनको make one group of this, ठीक है। this way you can learn all 8 part of speech, आपका कभी भी कोई मिस नहीं होगा। always noun, pronoun, adjective, verb, adverb, these are shun and shun, these are in one group, preposition, conjunction and interjection, ठीक है। अब now is it clear everyone कि आप इन 8 part of group को without book, without revision you can tell any time? मैम yes मैम मुझे इंटरजेक्शन नहीं समझ में आई। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्लियर करते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। yes बेटा मैम आई हैव अ डाउट। ask।
यस मैम, मेरा भी इंटरजेक्शन बच्चे, इंटरजेक्शन. यस मैम. Okay, now check out. It will clear. देखो, noun, the person we are talking about. It, चैट में तो इसकी डेफिनेशन इंटरजेक्शन. क्या बेटा? Repeat again. Your voice was not clear. Please repeat again. यस मैम, प्लीज रिपीट. Okay. Noun is clear. ठीक है? Name of the person, place and thing. Like these words, dog, cat, जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं. Now check an example here. The sun shines. ठीक है? The sun is noun. Anna goes to school. Anna is name of the person. School is name of the place. So these are noun. Noun, अगर हमें noun का name use नहीं करना, we use pronoun. ठीक है? It replaces noun. Noun को replace कर देता है. Replace का means सिर्फ नाम को रिमूव करके we are using some other word instead of name. So he, she, it, may, this, that. So these are pronoun. Like John is hungry. Next sentence पे again John wants to eat. अगर मैं बार बार उसका नाम John नहीं लिखना चाहती तो we can replace John with he. ठीक है? यहाँ पे he word किसको represent कर रहा है? John को. He wants to eat. Noun, pronoun. Noun, pronoun के साथ कौन सा word था? Noun, pronoun. One group was there ना? Which? मैम एडजेक्टिव. Yes, noun, pronoun and adjective. ठीक है? Adjective क्या करेगा? It will tell quality of noun. Clear? It describes noun. It gives additional information. Additional means ज़्यादा information देता है noun के बारे में. So these are the words which are adjectives: angry, brave, healthy, little. हम इनको ना explain जब one by one इन topics को लेंगे ना, we will explain it better further. Just now I'm just giving you an overview. एक आपको overview दे रही हूँ कि आपको इन words की meanings अच्छे से learn हो जाए, इनकी definitions अच्छे से learn हो जाएं और आपको इनमें yes. मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 है मैम, यहाँ तो 9 भी है. ये मैम यहाँ 9. article is extra. मैम Yes बेटा. मैम आप इस सभी की मैम जो पीडीएफ होती है मैम वो सेंड कर दोगे? Okay, I will send. ओके मैम. Okay, we are left with 10 minutes. Let's fast go for this. ठीक है? Brown dog. Dog देखो, dog is a noun. लेकिन dog कैसा है? ये एरो देखो इस तरफ शो कर रहा है. ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? ब्राउन वर्ड किसके बारे में बता रहा है? इट इज टेलिंग अबाउट डॉग. ठीक है? कैट कैसी है? फैट कैट है. तो अगर हम फैट यूज नहीं करते तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैट. लेकिन कैट कैसी है? कैट की अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, हम 2-3 एडजेक्टिव इकट्ठे यूज कर सकते हैं. वाइट फैट कैट. ठीक है? गार्डन कैसा है? बिग गार्डन है, ब्यूटीफुल गार्डन. ठीक है? फ्लारी गार्डन. So this way noun की जो additional information is provided by adjective. Now our next group is verb and adverb. Verb होते हैं actions जो sentences में action होते हैं, like run, go. देखो आपने चेक किया कि जो adjective है वो लेफ्ट साइड में है, right? मैम यस. The dog and cat are running. Dog और cat क्या कर रहे हैं? They are running. तो dog and cat क्या action कर रहे हैं? यहाँ पे running कर रहे हैं. ठीक है? Verb. लेकिन running कैसे कर रहे हैं? They run quickly. जल्दी से run कर रहे हैं. Fast, very slowly. Eats very slowly. ठीक है? बहुत धीरे से खा रहा है लेकिन कैसे? Very slowly. So it is telling quality. और देखो adjective is written left side and adverb is written on right side. Clear?
Yes, ma'am. आर्टिकल टुडे Yes, वी आर ma'am. नॉट कवरिंग, लेट्स कवर preposition, conjunction, interjection. अब जिसको प्रॉब्लम था ना बेटा, आस्क योर डाउट ऑन द स्पॉट. preposition, it shows relation between. देखो, I am going to my garden. देखो, I am going to garden. garden is a noun, I is a noun, ठीक है. लेकिन I am going, मैं जा रही हूँ कहाँ, ये कहाँ जा रही है, ये प्लेस बता रहा है ना, टू गार्डन, ठीक है. preposition, it is telling me preposition. conjunction, conjunction join two sentences. देखो, I was tired, मैं थकी हुई थी. I went to sleep, मैं सोने चली गई. तो इन दोनों सेंटेंसेस को किससे ज्वाइन किया, सो से, ठीक है. एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये, दोनों को किस वर्ड ने ज्वाइन कर दिया, सो ने. ओके, I was tired, so I went to sleep. So conjunction join sentences. It add two sentences, दो sentences को one बनाता है. देखो, let's suppose if you are asking to your friend कि खेलने चलना है, खेलने के बाद मार्केट चलते हैं, ठीक है. तो how you will ask your friend, अगर आपको ये दो sentences नहीं बोलने, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं ना. Ma'am, Yes. after playing, we went to market. Went means गए, and if you are planning in future तो went won't come, go went gone, ठीक है. मैम, yes, मैम आप जो पढ़ा रहे हो मैम वो वाला दोबारा से समझाना, हमारी क्लास कट गई थी. conjunction. यस मैम. Okay, just 1 minute, let me take. देखो बेटा, कंजक्शन है ना, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, ठीक है. द कैट इज रनिंग, एक सेंटेंस आपके पास ये है. डॉग इज रनिंग. आप इन दोनों सेंटेंसेस को अगर ज्वाइन करना है, बिल्ली दौड़ रही है, डॉग दौड़ रहा है, अगर आपको ये ना बोल के अगर इनको ज्वाइन करना, तो आप कैसे बोलोगे इसको. Ma'am, the cat and dog are running. यस, दिस इज कंजक्शन. दो सेंटेंसेस को जब हमें जोड़ना होता है, तो जिस वर्ड से हम जोड़ते हैं ना, द कैट एंड डॉग आर रनिंग. कंजक्शन है. तो एंड कंजक्शन है, ठीक है. किस वर्ड से हमने इनको ज्वाइन किया है, एंड वर्ड से हमने इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया. तो हमारा कंजक्शन क्या हुआ, एंड हुआ, ठीक है. And तो वो सारे वर्ड, यस. ma'am, so and very में क्या डिफरेंस है? सो मीन्स इसलिए, वेरी मीन्स बहुत. मैम वो वाला सो, मैम आई एम सो टायर्ड में सो जो है. दैट्स सो, आई एम सो टायर्ड. वहां पे इसका Yes. मीनिंग है काफी थका हुआ हूँ, काफी, इनफ. मैम उस वाले सो में और वेरी में क्या डिफरेंस होगा? वेरी मीन्स just 1 minute, 2 minutes. I am so tired. I am very tired. Very tired means you are telling that you are थोड़े से भी ज्यादा tired हो. And so means you are a bit tired, a less tired. Okay. Okay. Conjunction is clear, beta. यस Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. वो वर्ड जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, दैट इज कंजक्शन. एंड इंटरजेक्शन शोज योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. देखो, oops, I spilled the milk. Let's suppose अगर इस वर्ड को मैं oops ना लगा के मैं बोलती हूँ I spilled the milk, दूध गिर गया, ठीक है. एंड यू आर सेइंग कि oops, I spilled the milk, ओहो मुझसे दूध गिर गया. तो क्या डिफरेंस है दोनों में, Yes, ma'am. ठीक है. यस मैम. माई सेकेंड सेंटेंस इज शोइंग कि मुझे बहुत दुख है कि दूध गिर गया, ठीक है. इट शोइंग माई एक्सप्रेशंस. लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में आई एम सिंपली सेइंग दूध गिर गया, ठीक है. सो
oops word is showing my strong feeling कि something happened and I'm feeling very bad about it, कि मुझे उस चीज के बारे में बहुत बुरा लग रहा है. ठीक है. So these are the words. Interjections are followed by exclamation mark. Which is exclamation mark? मैम हैरानी वाला मार्क्स मैं लगा नहीं पा रहा कि मैम हमें हैरानी हो रही है। मैं लगा नहीं पा रहा मार्क्स. देखो this one, ठीक है, this is exclamation. जब भी आप interjection word use करोगे ना, you have to write exclamation mark. So aha, gosh, great, hey, मैम yes. मैम हमारे मैम ने कुछ मैम एग्जांपल्स करवाई थी मैम, हमें उसमें कुछ मैम हमारी मैम ने एग्जांपल्स करवाई थी कुछ इसकी मैम. Yes. उसमें हमने किसी में मैम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स डालना नहीं था. No, it is followed by maybe bit of interjections are more followed by exclamation. Yes. मैम जो लास्ट वाला ना वेल मैम उसमें भी नहीं है. No, it should be followed by exclamation mark interjections. And there is one more thing. Have you seen na sentences पढ़े हैं आपने exclamation sentences, right? मैम यस. तो जब हम मैम यस interjection topic करेंगे ना, तो there we will discuss कि what is difference between interjection and exclamation. उनमें और इनमें क्या difference होती है. Okay? देखो इनका ना ओके मैम. इंटरजेक्शंस का इनका एग्जैक्टली ग्रामेटिकल अगर हम उसमें देखें तो इसका कोई इस पे इफेक्ट नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ फीलिंग्स को शो करता है. अगर आप देखो कि अगर आप उप्स नहीं लगा रहे तो उप्स ना, अगर आप उप्स लगा रहे हो, देखो आपने यहाँ पे लिखा द डॉग एंड कैट आर रनिंग. अगर आप इस सिंपल सेंटेंस को लिखते हो द डॉग इज रनिंग एंड द कैट इज रनिंग, लेकिन जैसे ही आपने दोनों को चेंज किया, आपका यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल चेंज हो गया ना, आर आएगा मोर देन वन. ठीक है, लेकिन जब भी आप इंटरजेक्शन, whenever you are using interjection, you are not changing your sentence grammatically. Grammar rules के according you don't have to change your sentence. आपका सेंटेंस सेम रहेगा. सेंटेंस सेम रहेगा, आपको इसमें ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू ऐड इंटरजेक्शंस. ओके ओके मैम. देखो वी हैव दीज थिंग्स इन आवर ग्रामर. ठीक है, आपको ग्रामर बुक में ये बहुत